So let's begin with the today's topic, conical pendulum. Conical pendulum, as the name suggests, that यहाँ पर एक स्ट्रिंग फिक्स किया जाता है और इस स्ट्रिंग को एक हेवी मास हम बांध देंगे, ठीक है। और उसको अगर हम ऐसा घुमा देते हैं तो जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे उसका हाइट बढ़ता हुआ चला जाएगा, यस और नो, और ऊपर उठता हुआ चला जाता है, करेक्ट ना। If we try to whirl it in the horizontal plane, it will go like this. So this is what we get there. ये वाला डायग्राम अपने को मिलेगा, ठीक है। इसमें this is the length of the pendulum L, and this is the angle made by this pendulum with the vertical H. The height of this cone is equal to L cos theta. इसका adjacent component होगा, थीटा के सामने होता है साइन कंपोनेंट, तो जो कि L sin थीटा है, और थीटा का एडजेसेंट होता है cos कंपोनेंट L cos थीटा। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? सो H इज इक्वल टू L cos थीटा एंड R रेडियस, यहाँ पर जो सर्कल होगा उसका रेडियस इज गिवन बाय L sin थीटा। जबकि इसके अंदर जो टेंशन है उस टेंशन की अगर मैं बात करूं, if I talk about the tension, surely this will have the tension within. इसके अंदर टेंशन तो होगा जरूर, तो वो टेंशन कितना होगा, कैसा होगा? ये टेंशन होगा ऐसा, कितना होगा ये टेंशन? दिस टेंशन इज T एंड ये एंगल भी थीटा होगा अगर ये थीटा है, तो T का ये जो कंपोनेंट होता है we call this as the cos component, यहाँ तक ये होगा, और this is sin component T cos theta and T sin theta. I hope this is clear to all. तो अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस का इक्वेशन लिखे कि यहाँ पर ये जो मास है ये ऊपर भी नहीं उठ सकता और नीचे भी नहीं जा सकता, तो ऊपर ये T cos theta is balancing this vertically upward force is equal to vertically downward force. So what shall I write here? I'll write here it as T cos theta is equal to mg, और ये जो है this is the centripetal force because it is the circular motion and this is the centripetal force, correct now, which is working towards the center. So this T sin theta is the centripetal force and centripetal force is given by mv square upon r. It is given by mv square upon r. Let me divide both these equations. If equations को अगर मैं divide कर दूं, if I divide these equations, क्या मिलेगा मुझे? I'll get it as tt cancel tan theta is equal to m also gets cancelled. This will give me v square upon rg. क्योंकि ये अपॉन कुछ नहीं है तो उल्टा हो जाके जाएगा, तो इट विल बी tan theta is equal to v square upon rg. ये है फॉर्मूला फॉर द conical pendulum. Okay, this is the formula for conical pendulum. Now ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 पर इक्वेशन 3.56 के ऊपर का ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैं वेलोसिटी के लिए सब्स्टिट्यूट कर दूं। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द 2 पाई r अपॉन टाइम टेकन इज t. अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे तो मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए? दिस विल बिकम v स्क्वायर की जगह पर आएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इनटू rg. इसमें से r also gets cancelled. So we get it as t square is equal to 4 pi square r upon g tan theta. और अब देखिए यहाँ पे tan theta को मैं sin theta और cos theta लिख लूंगा, तो ये बन जाएगा t is equal to, taking a square root on either side, what am I going to get there? 4 का square root आएगा 2, pi square का square root आएगा pi, isn't it? एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? अब r बचेगा, g बचेगा एंड tan थीटा इन द डिनोमिनेटर, मतलब दिस इज sin थीटा एंड दिस इज cos थीटा. इज दैट क्लियर टू ऑल? दैट इज tan थीटा. नाउ लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर कि r को मैंने बोला r इज इक्वल टू L sin थीटा,
r के जगह पर क्या होगा, l sin थीटा, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज r अपॉन l is equal to r upon l is equal to r upon sin theta is equal to, I'll transfer sin theta यहाँ से इधर भेज दिया, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी r upon sin theta के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे l लिख लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, t is equal to 2 pi square root of l cos theta upon g. Well, this is the expression of l cos theta भी शायद मैंने कहीं देखा है, l cos theta is the height, L cos theta is the height. So let me just substitute here. अगर ये हम substitute कर ले तो क्या मिलेगा? Yes, this will give me the formula T is equal to 2 pi square root of h upon g. So this is the formula for the time period of conical pendulum. ये कौन सा formula है? Time period of conical pendulum. The formula for time period of conical pendulum. Is this clear to you all? Any doubts about that? क्या ये सबको समझ में आ गया? So with this I'll start with the MCQs. Let's start with the MCQs. So let's begin now. Theory questions है कुछ, the term centripetal acceleration was proposed by it was Newton, लेकिन ऐसे वाले questions में नहीं करना है. Centripetal acceleration is कौन सा है? Acceleration है तो वो वेक्टर है, ठीक है, वो कांस्टेंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर है या नॉट कांस्टेंट वेक्टर है? इट्स नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर को कांस्टेंट कब बोलते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहेगा. द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय m v स्क्वायर अपॉन r. रेडियस कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कभी चेंज हो सकता है शायद, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो जैसे जैसे पार्टिकल घूमता जाएगा वैसे वैसे उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, करेक्ट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले हैं, आप लोगों ने वो याद रखे होंगे आई एम श्योर. व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ? मतलब इन टर्म्स ऑफ जी चाहिए उनको, वो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, if an aircraft flying at a speed of, what is the speed of the aircraft? It is 400 meter per second, okay, through a circular arc of radius 0.6 kilometer. The radius of the arc is 0.6 kilometer. ठीक है, तो ये अगर मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये रहा तुम्हारा एयरक्राफ्ट, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर अपॉन r. v स्क्वायर अपॉन r. नाउ v स्क्वायर 400 into 400 divided by 0.6 kilometer, that is 600 meter, correct? 600 meter, 1 2 1 2 2 2s and 2 3s. So this is basically 800 upon 3, बराबर है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट दे वांट इन टर्म्स ऑफ g. दिस इज AC and g is equal to 10 meter per second square. So let me take the ratio of these two. So this will give me AC upon g is equal to, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, and this will become 80 upon 3, बराबर है क्या? So therefore AC is equal to how many times g? This will be 3 2s are 6, 2 बचा 20, 6 are 26.67, correct? So what is the answer here? A is the answer. Is that understood? A is the answer there. Clear? अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? Velocity vector. Please read the question carefully. They say
velocity vector and acceleration vector in a uniform circular motion are related as. कैसे होते हैं velocity vector और acceleration vector? Can you tell me how are they? Velocity vector and acceleration vector in the uniform circular motion. Check here now. इसका velocity और acceleration कैसे होगा? First let me show the velocity. I think the velocity is always tangential ना, तो यहाँ का velocity ऐसे होगा. I hope this is clear. This is the direction of the velocity vector, correct? And acceleration vector in uniform circular motion UCM है, और इसका centripetal acceleration कहाँ पर directed होगा? The acceleration or centripetal acceleration is always directed towards the center. So this is AC, correct? So what is the angle between them? 90 degree. They are always perpendicular to each other. समझ में आ गया? A body executing uniform circular motion has its position vector and acceleration vector. A body executing circular motion, यही इसी के अंदर अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच टेल्स अस अबाउट द पोजीशन. तो पोजीशन वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइक दिस. समझे क्या? टू टेल यू, पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ऐसा होता है, यहां से इस तरफ होता है डायरेक्टेड. दिस इज आर बार, दैट इज पोजीशन वेक्टर. एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, so they are opposite to each other. So what will be the answer? They are in the opposite direction. 77B. समझे? Next, for a particle performing uniform circular motion, choose the incorrect statement. हमें इसमें से incorrect statement find out करना है. चलिए देखते हैं. Magnitude of a particle velocity, that is speed, v is equal to r omega remains constant. हाँ, speed remains constant, तो ये सही है, इसलिए आंसर नहीं है, अपने को incorrect चाहिए. Particle velocity remains directed perpendicular to the radius vector, ये भी सही है. Particle velocity is always perpendicular to the radius vector, so this is also correct. This is not the answer. Direction of acceleration keeps changing as the particle moves, and magnitude of acceleration does not remain constant. अब अगर uniform circular motion है तो acceleration is given by AC is equal to v square upon r. जब तक speed constant है, ये constant है, तो acceleration constant होता है ना, magnitude constant होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो ये भी करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं है. बट मैग्नीट्यूड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. नो, इट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड और रेडियस कांस्टेंट है. सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, हेंस करेक्ट ऑप्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल? तो 78 का आंसर इज डी. वी वांटेड इनकरेक्ट आंसर देयर. इज दिस क्लियर? 79. एनी डाउट सो फार? Any doubt so far? Which of the following statements is incorrect? Once again, I want to find out what is incorrect statement. In one-dimensional motion, in one-dimensional motion, the velocity and the acceleration of the object are always along the same line. One-dimensional motion मतलब जब हम एक बॉल अगर ऊपर फेंका, नीचे आया, तो जब वो बॉल ऊपर जा रहा है, when the ball is going in the upward direction, the velocity is in the upward direction and acceleration नीचे होगा. करेक्ट है? जब ऊपर जा रहा है, नीचे आने के टाइम पे भी वेलोसिटी नीचे होगा और एक्सेलरेशन भी नीचे होगा. सो दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. या दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए ये आंसर नहीं है. इन 2 और 3 डायमेंशंस, तो ये जो था, ये था यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये बात है. अब 2 और 3 डायमेंशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन इट कैन बी, या सर्कुलर मोशन इट कैन बी, जिसमें x और y दोनों भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको 2 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं या 3 डायमेंशन. द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 180 डिग्री. या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैन हैव एनी वैल्यू. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट आंसर. बराबर है क्या? क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी इज आल्सो ऑलवेज टेंजेंशियल होता है, लेकिन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड. करेक्ट ना? Isn't it? Then the kinematical equations for uniform acceleration can be applied in case of uniform circular motion. Actually वो same equations नहीं, लेकिन उसको change करके apply करना पड़ता है. Same equations तो नहीं, लेकिन उन equations को we have to change. तो इसलिए ये शायद
इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। अब अपने को ऑप्शन डी चेक करना पड़ेगा, तो लेट मी चेक व्हाट इज ऑप्शन डी हियर। ऑप्शन डी इज, क्या बोल रहा है ये? The option D says the resultant acceleration of an object in circular motion is always the center only if the speed is constant. हाँ, ये करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं है, and therefore C is the answer. Is that clear? Acceleration is always constant and it is always towards the center. सही वाले। चलिए अगला क्वेश्चन। A particle is moving, तो यहाँ तब ये सब जो थे वो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चंस थे, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? तो लेट्स गेट गोइंग नाउ। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यूनिफॉर्म स्पीड v. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री? अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, वो 60 डिग्री चला गया, यहां से शुरू किया उसने, ये 90 डिग्री पर है, 60 डिग्री मतलब इधर गया, तो उसका अपने को डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज डिस्क्राइब्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री? Shall I explain? Shall I explain? The answer is R. Initial, देखिए ये यहां से इधर चला गया है, दिस इज 60 डिग्री। नाउ दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, करेक्ट? सो दीज टू साइड्स आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस नहीं। अगर ये 60 है एंड दिस टू साइड्स, दिस टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो ये इक्विलैटरल हो जाएगा यार। समझ में आ रहा है क्या? इज दैट क्लियर? बिकॉज थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 60 is 180, so 2 theta is 180 minus 60, 120, theta is equal to 60 degree. So this is actually going to be an isosceles triangle. यहां से वो शुरुआत कर रहा है और यहां पे जाके रुक रहा है। What is the displacement here? What is the displacement? If I draw a vector from the starting point to the end point, so this will give me the displacement, and the displacement is equal to r. The answer is C. Is that understood? Is this okay? समझ में आ गया क्या सबको? Alright, so the answer is C. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्या दिया है क्वेश्चन? A cyclist starts from the center O of a circular path of radius 1 kilometer. This radius is equal to 1 kilometer. ठीक है? Reaches the HP of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. If the round trip takes 10 minutes, the net displacement and average speed of the cyclist is 10 मिनट में अगर ये हो रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Is he coming to the same position, initial position? Yes. उसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है ना? Yes, the net displacement is 0. उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आएगा यार। तो 0 होने वाला है दो आंसर से डिस्प्लेसमेंट। अभी मुझे पता करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। समझे क्या? नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? R. टोटल डिस्टेंस इज R
प्लस आर, और ये 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर अपॉन 4, करेक्ट ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब ये आएगा तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो 10 अपॉन 60 लिखना पड़ेगा मुझे, ताकि वो 1 अपॉन 6 आवर हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? समझे? तो कुल मिलाकर अब क्या होगा ये देखते हैं। दिस विल बिकम लाइक दैट इज इक्वल टू आर इज 1 किलोमीटर, तो 1 प्लस 1 2, 2 टाइम 2 प्लस ये भी 1 ही आएगा, सो 2 प्लस पाई बाय 2 अपॉन 1 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस पाई अपॉन 2, एक्चुअली अपॉन 2 इंटू 6 आएगा ये, सो 3 टाइम्स, सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज नॉट 1, अब ये आएगा 3 to 4 plus 3.14, 7.14 into 3, that is equal to कितना आएगा? 21.42 kilometer per hour. So what's the answer here? The answer is D. Any doubts about this? समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन। Okay. A cyclist is riding with the speed of, स्पीड दिया है उसका 27 किलोमीटर पर आवर। आपको अच्छे से पता है कि किलोमीटर 2 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 आवर 3600 seconds. So that will come out to be 26 into 5 by 18. करेक्ट है? 9 3 जा 9 2 जा 15 upon 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? As he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, radius is equal to 80 meter. I'll say R is equal to 80 meter. He applies the brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second every second. Yes, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ऐसा हो जा रहा है, he is going on the circular track, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है? तो जब वो सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है तो उसका स्पीड अगर चेंज हो, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो उसको यूसीएम कहते हैं। अगर उसका स्पीड मतलब v is equal to constant, if the speed is constant then it is called as uniform circular motion. लेकिन उसका स्पीड चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे he reduces his speed, तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में एक एक्सेलरेशन जो मैंने आपको पहले से बता के रखा है वो तो होता ही है, दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर, नो डाउट अबाउट दैट, एंड दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल चेंजिंग द डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। लेकिन अब यहां पर दूसरा उसका स्पीड, प्रेजेंटली उसका स्पीड है, इनिशियल स्पीड जो है उसका है वो 15/2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका स्पीड अब आगे जाके यहां तक जाएगा तब उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से वहां पर वो जब जा रहा है ऐसे, तो देयर इज एन एक्सेलरेशन, देयर इज अ रिटार्डेशन। एक्चुअली वो जा तो उस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका स्पीड, वो ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है तो उसका जो स्पीड है वो कम हो रहा है, मतलब इट इज डिसेलरेशन। और डिसेलरेशन में द वेलोसिटी इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। प्लीज रिमेंबर, यहाँ का जो वेलोसिटी होता है ना वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। सो if I show here the velocity, no doubt that velocity is going to be in this direction, this is the direction of velocity, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है, या रादर उसको मैं डिसेलरेशन बोलूंगा, वो उस वेलोसिटी को कम करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिटार्डेशन, दिस इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज टेंजेंशियल टू द रेडियस। इज दैट अंडरस्टूड? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये दोनों भी वेक्टर्स है
और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं यहाँ पे तो मुझे मिलेगा उसका टोटल एक्सेलरेशन। समझ में आ गया क्या? दिस इज वन कंपोनेंट, दिस इज अदर कंपोनेंट, एंड देयर वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज द टोटल एक्सेलरेशन which is given like this will be the total acceleration। ये कुछ नई बात मैंने आपको बता दी है, समझ में आ गया क्या? तो these are the components of acceleration, this is the non uniform circular motion। तो the total acceleration is equal to square root of a centripetal acceleration का square plus a tangential acceleration का square। समझे क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उन्होंने रेडीमेड दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों केसेस में होता है, नॉन यूसीएम और यूसीएम में। सो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर ये रहा वेलोसिटी, क्या है ये 15 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 225 अपॉन 4, एंड रेडियस इज 80 मीटर, तो ये रहा 80। समझे? तो दिस विल बिकम 5 4 जा 25 5 जा 5 16 जा 45 अपॉन 64, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मुझे टोटल एक्सेलरेशन के लिए इन दोनों को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर, दिस विल गिव मी कितना आएगा ये 4, 4 से अगर डिवाइड ही कर दूं सेंटीमीटर का तो क्या आएगा ये, इज दैट 0.7 समथिंग? नहीं, (45 upon 16) कितना आएगा? सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, यू कैन प्लीज टेल मी द कैलकुलेटर वाला आंसर। ए टोटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल कितना आ रहा है 45 अपॉन 64, 16 16 चौक 64, 16 3 48 32 32 कितना आ रहा है 1 पॉइंट कैसे आएगा यार, कुछ भी 16 में 32 कोटला एसीपी 45 अपॉन 64 कितना आ रहा है 0. हाँ ठीक है, तो मैं इसको 0.70 ही ले लेता हूँ, चलो कोई नहीं, आई टेक दिस एज 0.7। तो इधर क्या आएगा, ये 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर एंड दिस इज 0.25, तो कुल मिलाकर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू कैसे 0.74, 0.74 इज समवेयर नियर बाय, लेकिन लेस देन 0.81 ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 विल बी 0.9, तो 0.9 से थोड़ा कम, विच इज द करेक्ट आंसर बी। करेक्ट? इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर हियर, बी इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? ये स्टार प्रॉब्लम है ना, शुड बी अ स्टार प्रॉब्लम। 82। अगला क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A stone is tied to the end of a string 100 centimeter long and whirled in the horizontal circle with a constant speed। इसको horizontal circle में constant speed से, if the stone makes 14 revolutions in 22 seconds, then acceleration of the stone is। रेडियस कितना दिया है यहाँ पे in horizontal circle, so I would say the radius, समझो कि ऐसे उसको वर्ल किया है,
and if it is 100 centimeter, L is equal to 100 centimeter. That is equal to 1 meter, na? Along the horizontal with a constant speed. What is the time duration here? T is equal to 14 revolutions in 22 seconds. So what is the revolutions per second? 7 upon 11 time period आएगा ये. These many revolutions per second. ये तो frequency हो गया ना फिर. This is not time period. Number of revolutions per second. So what will be the time period? It is 1 upon n, that is 11 upon 7. समझ में आ गया? Second. Is this clear? Because frequency and revolutions, the time period, they are reciprocals of each other. Correct? Okay. Then what is the acceleration of the stone? इस stone का acceleration. अब उसका कौन सा acceleration मतलब क्या होगा? They are asking about the centripetal acceleration, which is v square upon r और r omega square और v omega. समझे क्या? v square upon r omega square. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे रेडियस पता है. दिस इज द रेडियस एक्चुअली. आई यूज दिस फॉर्मूला. एंड ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई बाय टी बोलिए या 2 पाई एन बोलिए. सो दैट विल बी 2 इंटू पाई इंटू एन. व्हाट इज एन? 7 अपॉन 11. इज दिस ओके? समझे क्या? चलिए अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे. आई जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. आई यूज आर ओमेगा स्क्वायर. सो आर इज 1 मीटर. ओमेगा का स्क्वायर मतलब दिस इज ओमेगा क्या बन जाएगा एक्चुअली देखिए. दिस इज 2 इंटू दिस इज 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 11. 7 कैंसल, 11 टू जा. सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड. सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो दिस इज 4 का स्क्वायर 16. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द आंसर हियर? ए. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. Cyclist starts from the center of O circular park, radius 1 kilometer, moves O, P, R, Q, O shown in the figure. If he maintains constant speed, V is equal to 10 meter per second, constant. What is his acceleration at point R? यहां पर उसका एक्सेलरेशन क्या है? देखिए उसका स्पीड कांस्टेंट है. अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही होगा. देयर इज नो अदर एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट. समझे क्या? यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन व्हिच इज AC. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस AC? इट इज v square upon r. करेक्ट? So what is the speed he is maintaining? 100. 10 into 10, 100. And what is the radius here? Radius is 1 kilometer. 1000. 1 2. So this is 0.1 meter per second square. That is the answer. समझ में आ गया? So B is the answer there. Is this clear to all? Is this okay? Is that okay? समझ में आ गया? Constant speed. I'll go for the next question. चलिए क्या दिया है यहाँ पर? An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. सर्कुलर ग्रूव है, उसके अंदर एक इंसेक्ट पकड़ा गया है, मतलब अटक गया है. अब उसका क्या दिया है? उसका रेडियस दिया है. रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. द आंसर, ऑल द ऑप्शंस आर इन सेंटीमीटर पर सेकंड. सो इसको मैं मीटर में चेंज नहीं करूंगा. इट मूव्स स्टेडीली, कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशंस इन 100 seconds. Number of revolutions per second, 7 revolutions in 100 seconds. So what is the time period? 1 upon n, that is equal to 100 upon 7. Correct now? What is the linear speed of the insect? What is the linear speed of the insect?
सो उनको v पूछा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, बट ओमेगा इज इक्वल टू या तो आप 2 पाई बाय t लिखिए या 2 पाई n लिखिए. Now this is 2 into pi. Pi is 22 upon 7 and n is 7 upon 100. ये गया. So this is 44 upon 100, that is 0.44. Correct? Radian per second. This is omega. Substitute कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? R. R is 12 into 0.44. So that will be 5.28 centimeter per second. So what is the answer here? B is the answer, 5.3. Any doubts? Is that clear? I'll go for the last question here. A particle is moving with a uniform speed v in the circular path of radius r with the center at O. When the particle moves from a point P to Q on the circle such that POQ is theta, then the magnitude of the change in the velocity is. A, B, and I'll just mark here. This is angle theta. Radius is R. This is O. I'll call this point as P. I'll call this point as Q. Correct? Magnitude of the change in the velocity. Angle POK is theta. What is the change in the velocity? कैसे करेंगे? I'll just show you the velocities now. This is velocity at P and this is velocity at Q. सही है? Let me call this as VP bar and this is VQ bar, or let me call this as V1 bar and let me call this as V2 bar. ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बिकॉज दिस इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन. सो मॉड्यूलस ऑफ V1 बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ V2 बार इज इक्वल टू V. ये तो पता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है. नाउ आई वांट द चेंज इन द वेलोसिटी. चेंज इन द वेलोसिटी क्या होता है? V2 बार माइनस V1 बार का मॉड्यूलस. सही है, V2 बार माइनस V1 बार का मॉड्यूलस. इज दैट क्लियर? बराबर है क्या? P bar plus Q bar. I can write it as V2 bar plus minus V1 bar. ऐसा भी लिख सकता हूँ. Now this is very much like P bar plus Q bar is equal to R bar आता है. And the magnitude of this resultant is given by R is equal to square root of क्या होता है? Magnitude of this is given by R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. समझ में आ गया? तो इसको अगर मैं यूज कर लूँ यहाँ पे तो द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस ऑफ V2 बार माइनस V1 बार इज द रिजल्टेंट. उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय V2 स्क्वायर प्लस अरे माइनस V1 स्क्वायर का मतलब वही आएगा, बराबर है ना, प्लस 2 टाइम्स V2 इंटू V1, लेकिन ये होगा माइनस V1 क्योंकि माइनस इधर जुड़ जाएगा इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. अब देखिए ये दोनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है ना. एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स. मतलब किसी तरह से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इफ आई हैपन टू एक्सटेंड दिस फर्दर, यहां से अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, so what is the angle between these two? Angle between any two lines is equal to angle between their perpendiculars. क्योंकि velocities are perpendicular ना. कुछ समझ में आया क्या बाउंसर? क्या समझे? ओके.
तो ये क्या बन जाएगा जी बताइए, दिस विल बिकम, दैट इज इक्वल टू, it will become this. But I know that modulus of V1 bar is equal to modulus of V2 bar is equal to V1 V. तो इसका स्क्वायर भी वही आएगा. So this will become square root of V square plus V square minus 2V square cos theta. 2V square कॉमन आएगा, बाहर आके वो बन जाएगा रूट 2V, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 plus cos theta. Is that understood? हाफ एंगल फॉर्मूला रूट 2V, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. सही है. तो ये रूट 2 और ये रूट 2 बनेगा 2V cos theta by 2 is the answer. So 2V cos theta by 2 D is the answer there. Is this clear to all? And I think this is a star problem. Is this clear to all? समझ में आया सबको ये? I think I'll stop here for physics.